Hello, my dear student. Have a wonderful morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. The class is especially for class 6, and in our previous lecture class we have started the chapter that was your language portion, and in language portion chapter 3. Chapter 3 is the kinds of noun. Chapter 3, the kinds of noun, it was completely completed. I told you what's noun and what are the kinds of noun. I discussed with you. So today we will discuss the exercise related to this chapter, and before doing this exercise I just want to memorize all the nouns and their kinds. So student, I told you that all the naming words are noun. All the naming words are noun. You can say that noun is the name of any person, place or thing. You can say that noun is the name of any person, place or thing. It means that all the things that are presented in all over the words, all the name of the person, all the name of the places, all the name of the things that are presented here and there in all over the world, you can say that these are noun. Fine. So you can find noun anywhere, at your place, at your home, at your school, at the road, wherever you go, you can find noun. So this is the thing for you, that noun is presented everywhere. Noun is presented everywhere. You will go anywhere, you will go somewhere, but you can find noun at that place. आपको हर जगह पर noun ही मिलेगा. Fine. Suppose that you are at your home now. You are at your home now. So how many things can you counted as a noun? I hope so that each and everything are counted as a noun. Each and everything are counted as a noun. Just like all the utensils that we found in the kitchen, all the material that we found in the kitchen for preparing anything, for making something, and all the family members that are counted as a noun, and the books that you have, the notebooks that you have, and the tiffin, the lunch box, and bags. It means to say that all things that you keep in your bag, and the utensils, the kitchen material that are used to make something, these are counted as a noun, and all the family members are noun. Suppose that you are sitting in a class, आप class में बैठे हो, so how many things can be counted as a noun? How many things can be counted as a noun? So the board is your noun, and the teacher is your noun, the teacher is your noun, and the students are counted as a noun. All the friends are noun, the playground is noun, the subjects are noun, bags are noun, tiffin, lunch box, all the things are in the category of the noun. So you are seeing that, you are getting this point that each and everything are counted as a noun. Nothing can be counted except noun. It means all the things that have their particular name, they have their individual name, these are counted as a noun. So the definition, the one line definition is that all the naming words are noun. This is the one line definition, then all the naming words are noun. So student, this is the definition of the noun and the kinds of noun: the proper noun, the common noun, the collective noun, the abstract noun, and the common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, and material noun. These are the 5 types of the noun. I discussed with you all these things, but one more thing is that before starting it, if I ask you what is the definition of the proper noun, so the definition of proper noun is that the particular name of any person, place or thing is in the category of the proper noun. Particular name of any person, place or thing. A common noun is the common name of any person, place or thing, and collective noun if the things are in a collection, if things are in a collective form, so these are called as a collective noun. And the material noun, so the material, the substance that we use to make something, something to make another thing, that is called your material noun.
And abstract noun means that type of the noun that we cannot touch, that we cannot see, but we can only feel that. So this is the abstract noun. Suppose that you are sitting in a class and you have to find how many abstract nouns are there. So you can find that that some boy is intelligent. So intelligence is insight in that boy. And if someone is beautiful, so beauty is inside in that girl, that particular girl. And one more thing is that if your class is so long, so there is a length in the class, so you can find length, and length is your abstract noun. Length आपकी abstract noun है. And if the class is wide, so width, width, that is your abstract noun. I am writing over here w, the long word, that is the length, and the second one is your width, that is your width, width, and the next one is your height, that is the height, HEIGST. Fine. So this one is our, and if someone is intelligent, to intelligence is a noun. Intelligence is a noun. Okay. And if someone is beautiful, so beauty is a noun. Someone is beautiful, so beauty is a noun. So I hope so that you have got the definition of the noun and all the kinds of noun very well. So student, after completing this chapter, I just want to discuss with you the exercise of this one related to this chapter. So I am writing over here book exercise page number 11. So student, please open page number 11. That is the book, and you have to open page number 11. And on page number 11, the first exercise that is given, that is the tick the correct option exercise. The first exercise that is given on page number 11. So open it properly and fill it with pencil. So the first one is exercise number A. The first one is name of the person, animal or place is called. So the correct option is noun. So you have to fill it. The second one is noun के कितने parts हैं. So I just told you the 5. So the second this is the first one and this is the second one, 5. You have to fill it. And the third one, निम्नलिखित में material noun है. So the both. The answer will be both. This is the third option, both. Because these are the numbers are given, gold, copper and both. So both is the correct option. Okay. Now the exercise B is given over here, exercise B. And in exercise B you have to find the noun. Exercise B you have to find the noun. And you have to tell the kinds of its noun. He is flying a kite. So student, kite is your noun, and which type of the noun is it? It's a common noun. So kite is your common noun. I think you have got kite is your common noun. You have to fill it. Second one, the boys are playing cricket. So the boys are your common noun, and cricket is also your common noun. Boys, common noun, cricket, common noun. So in the sentence there are two nouns, boys and cricket. So boys common and cricket is also common. The third one, the ring is made of gold. This ring is made of gold. So ring, what is ring? Ring, anguti. It's a ornament. It's a jewelry. So fine. So ring is a common. It's a common thing. And gold is the substance, the material by which the ring is made. So this is your material noun. And sentence number 4, iron is very useful metal. So iron is your material noun because iron is a metal by which different types of the things are made. And the fifth one, the fox saw the bunch of grapes hanging from a tree. So the fox is a common noun because there are so many types of the fox. There is not a particular types of the fox. Bunch of grapes
there is a bunch of grapes. So bunch is a collection of grapes. So this is your collective noun. Now our football team has won the match. So team is a collective noun. Match, different types of cricket match, football match. So this is your common noun. Nobody can doubt his sincerity. So doubt, what is doubt here? Doubt is a verb. And sincerity, what is sincerity here? Sincerity is your abstract noun. Sincerity is your abstract noun, and the word has been come from the word sincere. Okay, sincere is your adjective. Rani Lakshmi Bai fought with courage. Rani Lakshmi Bai, it's the name of the person. It's the name that identifies someone. It specifies someone. It points out someone special. So this one is your proper noun. Courage. Courage is your abstract noun because courage. If you are a courageous person, it means you have courage inside you. So that is the specific quality. That's the particular quality that you have inside you. So this is your abstract noun. And you should have faith in me. You should have faith. The faith. If you should have faith in me. So faith is an abstract noun. Mumbai is the biggest city of India. So Mumbai is a particular name of city, and India is also a particular name of country. So these two nouns are here in a 10-number sentence. So these are your proper noun. And now see exercise number C. Exercise number C, you have to identify the countable and the uncountable nouns. So student, you have to do this exercise only on book and with pencil. Okay. So villages, what is villages? Villages are countable because you can count village, and bags you can count it. Bags, silver is village is your countable, and silver uncountable because you can weigh it, you can measure it. So it's uncountable. Bags is your countable things. Oil uncountable. Boys countable. Wood uncountable because you can weigh it. Sticks countable. Cotton uncountable. Chairs countable. Wool uncountable. Children countable, and shirts countable. So through this way you can classify, and you can write the name of countable and uncountable nouns. So countable noun are those things which you can count them easy way. You can count them. But uncountable things are those things which you can only weigh, which you can only measure. So student, this is your exercise that is completely completed today. And in our next exercise class we will start the next chapter, that is the noun number. Okay student, I hope so that you have got this chapter very well, the noun and its kinds and the exercise related to this one. So student, that is enough for you today. Thank you and have a nice day to one you all. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 6 क्लास हिंदी मीडियम 6 हिंदी मीडियम आपको चतुर्था पाठा अस्माकं श्रमजीविका का तीसरा संकेत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आप घर में जरूर है, लेकिन परिश्रम से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यानी बिना परिश्रम किए आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं और परिश्रम से पढ़ाई करते रहें। ठीक है? तो बच्चों, इसके पहले के 2 संकेत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अस्माकं श्रमजीविका का मतलब होता है कि हमारे श्रमजीवी यानी परिश्रम करके जीविका चलाने वाले। ठीक है? तो उसमें ये जो तीसरा संकेत है ओ नापितों से लेकर के स्थान तक है। नापितो हम किसको कहते हैं? नाई को, जो हेयर कटर होता है। ठीक है? ओ नापितों से लेकर डैश 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 स्थान। ठीक है? और जब आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की होगी बच्चों, तो आपने संदर्भ भी लिखा होगा ना। संदर्भ एक बार ही लिखना है आपको, ये मैं बताती हूँ हमेशा। संदर्भ
कैसे लिखना है एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के अस्माकं श्रमजीविका नामक पाठ से ली है। ठीक है, तो संदर्भ एक बार सिर्फ लिखेंगे स्टार्टिंग में। ये नहीं कि जितने बार आप संकेत लिख रहे हैं उतने बार ही आप संदर्भ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, संदर्भ एक बार, फिर संकेत डालते रहिए और अर्थ लिखते रहिए। दूसरी बात ये कहनी है आपसे कि मैं जो यहाँ पर संस्कृत की पंक्तियां लिखती हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। आप संकेत डालेंगे, संकेत के बाद अर्थ हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और बस इन पंक्तियों का अर्थ लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओ नापितौ किम युवाम आवयोः शिरमुंडनम करिष्यताम्। ओ नापितो, ओ नाइयो। किम मीन्स क्या, युवाम मीन्स तुम दोनों, आवयो मीन्स हम दोनों के, शिरमुंडनम करिष्यताम् सिर के बाल काटोगे। ओ नाइयो, क्या तुम दोनों हम दोनों के सिर के बाल काटोगे। आम मीन्स हाँ। तिष्ठ बैठो, आवाम युवयोः सेवाम करिष्यावः। हम दोनों, आवाम मीन्स होता है हम दोनों और युवाम युवयो मीन्स तुम दोनों। ठीक है, हाँ बैठो, हम दोनों युवयोः सेवाम करिष्यावः तुम दोनों की सेवा करेंगे। युवाम कर्तन कार्ये निपुणौ स्तः, तुम दोनों कर्तन कार्य यानी बाल काटने के कार्य में निपुणौ स्तः निपुण हो, कुशल हो। तुम दोनों बाल काटने के कार्य में निपुण हो। फिर से देखिए, ओ नाइयो, क्या तुम दोनों हम दोनों के सिर के बाल काटोगे। आमिस हाँ। तिष्ठ बैठो, हम दोनों तुम दोनों की सेवा करेंगे। युवाम कर्तन कार्ये निपुणौ स्तः, तुम दोनों बाल काटने के कार्य में निपुण हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पहला संकेत जो है वो पूरा हो गया। अब दूसरा संकेत मैं पढ़ाती हूँ। हाँ बच्चों, ये तीसरा संकेत था ओ नापितो। इसके बाद देखिए एक संकेत और है, ये लास्ट संकेत पड़ेगा और इन पंक्तियों का अर्थ मैं पढ़ा रही हूँ। ये दूसरा संकेत है बच्चों, दूसरा यानी लास्ट। युवाम से लेकर करिष्यावः तक, युवाम करिष्यावः, ये लास्ट संकेत है। अब देखिए इसकी पहली लाइन है युवाम अजाजीवौ स्तः, युवाम अजाजीवौ स्तः, ये पहली लाइन है। दूसरी है युवाम अजाजीवौ कुत्र गच्छता। कुत्र मीन्स कहाँ, कुत्र गच्छता। आवाम अजान आदाय, आदाय में बच्चों प्रत्यय है, ल्य प्रत्यय। ठीक है, वनम गच्छता, वनम गच्छता। किम तत्र युवाम, चौथी लाइन है, किम तत्र युवाम अजाचारणम करिष्यता, अजाचारणम करिष्यता। आम तत्र, आम मीन्स हाँ, तत्र आवाम अजाचारणम करिष्यावः, अजाचारणम करिष्यावः।
तो बच्चों ये संकेत युवांग से लेकर के करिष्यावा तक, ठीक है, संकेत और उसके बाद अर्थ हेडिंग डालूंगी, ठीक है। अब देखिए, युवाम अज जीवो स्था, युवा मीन्स तुम दोनों, अज जीवो मीन्स गड़रिया, ठीक है, तुम दोनों गड़रिये हो। युवाम अज जीवो कुत्र गच्छता, अब क्वेश्चन किया जा रहा है, युवा मीन्स तुम दोनों, अज जीवो मीन्स तुम दोनों गड़रिये, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छता मीन्स जा रहे हो, तुम दोनों गड़रिये कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों गड़रिये हो, तुम दोनों गड़रिये कहाँ जा रहे हो। आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, युवा मीन्स तुम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों। हम दोनों अजान आदाय वनम गच्छता, हम दोनों बकरियों को, आदाय मीन्स लेकर, बच्चों लेकर ही शब्द आएगा, इसमें आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, समझ रहे, तब जाके शब्द बना आदाय। और आपको बता दें कि ल्यप प्रत्यय जो है वो कर के अर्थ में आता है, जैसे लेकर, खाकर, जाकर, सोकर, ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय जो है वो कर के अर्थ में आता है। तो आप उसी संदर्भ में इसका अर्थ लिखेंगे लेकर, आदाय में लेकर, हम दोनों बकरियों को लेकर के जंगल में जा रहे हैं, हम दोनों बकरियों को लेकर जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। किन मीन्स क्या, तत्र मीन्स वहां, युवा मीन्स तुम दोनों, अजाचारणम करिष्यता बकरियों को चराओगे, है ना, अजाचारण मीन्स बकरी चराना, क्या वहां तुम दोनों बकरी चराओगे, आम मीन्स हाँ, तत्र मीन्स वहां, आवाम मीन्स हम दोनों, अजाचारणम करिष्यावा बकरी चराएंगे। फिर से देखिए, तुम दोनों गड़रिये हो, तुम दोनों गड़रिये कहाँ जा रहे हो, हम दोनों बकरियों को लेकर के जंगल में जा रहे हैं, क्या वहां तुम दोनों बकरियां चराओगे, मीन्स हाँ, वहां हम दोनों बकरियां चराएंगे। तो बच्चों ये तीसरा और चौथा संकेत था जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है। और विशेष ध्यान रखिए, मैं हमेशा इस बात को दोहराती रहती हूँ कि जब भी किसी चैप्टर का अर्थ पढ़ाया जाए तो उसके पहले आपको उसके शब्दार्थ याद करने हैं। जब आप शब्दार्थ याद कर लेंगे तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझने में सुविधा होगी। समझ में आ रही है ये बात? तो आप स्टार्टिंग में ही शब्दार्थ याद करें, आपकी बुक में दिए हुए शब्दार्थ, वो शब्दार्थ याद करें, फिर संकेत डाल करके इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। हर एक संकेत के बाद 2 लाइन का गैप करके लिखें, ब्लैक लाइन कर दें एक संकेत के बाद। क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत सुंदर और स्वच्छ लेख होना चाहिए आपका, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर 4 यानी चतुर्था पाठा अस्माकं श्रम जीविका का अर्थ पूर्ण हो गया है। इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपना कार्य समय से पूर्ण करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज न्यू चैप्टर मानव शरीर रचना एवं कार्य, मानव शरीर की रचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला तो शरीर, मनुष्य का शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और ये कोशिकाएं शरीर में
अलग अलग आकार की, अलग अलग ढंग की होती है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं यानी कई कोशिकाओं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं के संगठन से क्या बनता है? ऊतक बनता है। और कई ऊतक मिल करके अंग का निर्माण कर देते हैं। यानी हमारे शरीर में बहुत प्रकार की कोशिकाएं होंगी और बहुत प्रकार के ऊतक होंगे, क्योंकि सभी का अलग अलग, हर अंग का अलग अलग कार्य है, अलग अलग ढंग है। इसलिए शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। असल कोशिकाओं से, अनलिमिटेड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, बना होता है। और ये छोटी छोटी कोशिकाओं के जब ग्रुप बनते हैं तो इनको ऊतक कह देते हैं। और कई ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण कर देते हैं। तो प्रत्येक जीव का आकार होता है जिसे शरीर कहते हैं। यह शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित होता है। सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जीवों की बहुकोशिकीय एक खास तरह के काम आती है। सभी कोशिकाएं प्रत्येक प्रकार के कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो अलग अलग टाइप की होती हैं। शरीर में किसी विशेष कार्य को करने वाली कोशिकाओं को के ग्रुप को या समूह को अंग कहते हैं। मैं बताया छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं और कई ऊतक, एक जैसे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और ये सभी ऊतक डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं। तो अब नाड़ी प्रणाली, यानी शरीर में सबसे, वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो सभी है, लेकिन रोल जो है वो हार्ट का भी, यानी हृदय का भी एक अद्वितीय रोल है। हृदय, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नंबर 1 आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय, 4 कोष्ठ होते हैं। और हृदय में 7 वाल्व होते हैं। तो इनका सबका एक अलग अलग रोल है। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बहुत डरता है और अचानक अपने आप डरने लगता है। जैसे कोई किसी छत के नीचे बैठा है और वो एकदम से भाग खड़ा होने की स्थिति में हो जाए, उसको लगने लगे कि कहीं छत तो नहीं गिर रही है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि नंबर 1 हार्मोन्स और नंबर 2 हार्ट के वाल्व। 2 प्रकार के कार्य हैं इसमें, एक हार्मोन्स और दूसरा है वाल्व। हृदय के जो 7 वाल्व बताए उनमें से अगर कोई वाल्व लीक कर रहा है, हृदय का कोई वाल्व अगर लीक करने लगे तो आदमी के अंदर भय बहुत उत्पन्न हो जाता है, वो डरने लगता है, हर जगह डरता रहता है। तो हृदय सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हृदय ही शरीर में रक्त को सारे शरीर में भेजने का काम करता है, उसको शुद्ध करता है रक्त को, जो कि धमनियों और शिराओं के द्वारा हृदय से रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ऑक्सीजन लिया हुआ ब्लड है या अच्छा फिल्टर रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम भी करता है। और वापस भी जब वापस रक्त आता है तो वो सभी कोशिकाओं से, यानी ऊर्जा निकलने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में मिल जाती है और उसको वापस हृदय में आती है। हृदय में जब आती है तो हृदय के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो फेफड़ों को दे दी जाती है और फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के फिर से ब्लड में मिलाई जाती है। तो इस प्रकार से पूरा सर्कुलेट होता रहता है। और नाड़ी की गति, नाड़ी स्वस्थ मनुष्य की एक मिनट में 72 बार धड़कती है।
नाड़ी आप जब कभी डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी नाड़ी को देखता है, नाड़ी वो देखेगा। ये जो हथेली है, हथेली में ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ की जो वेन्स हैं इसे ही नाड़ी कहते हैं। और वो इस वेन्स को नीचे हल्के से, बहुत तेजी से नहीं दबाएगा, हल्के से हाथ रख करके आप भी चेक कर सकते हैं, यहाँ धड़कन की का एहसास हो रहा है। तो 1 मिनट में नाड़ी 72 बार धड़कती है। तो जब जगत के सभी जीवों का निर्माण अनेक अंग प्रणालियों से हुआ है, हम इन प्रणालियों का एक अध्ययन मानव शरीर के रूप में भी कर सकते हैं। जब हमारे घर में फोन की घंटी बजती है, तुम्हें कैसे पता लगता है कि कोई तुम्हें फोन कर रहा है? तुम तुरंत कहोगे हमारे कान बता रहे हैं। तो कानों का एक रोल अलग हो गया, कानों का कार्य अलग हो गया। इसी प्रकार से देखने का कार्य आंखें करती हैं और सोचने का कार्य मस्तिष्क करता है। ये सभी अलग अलग ढंग की कोशिकाओं से बने होते हैं और मस्तिष्क में भी नाड़ियों का जाल बिछा रहता है। अगर उस शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है या बाहर से कोई चीज इंजेक्ट की जाती है तो तुरंत मस्तिष्क को सूचना मिलती है या मस्तिष्क तुरंत नाड़ियों के जाल के कारण तुरंत बता देता है। नाड़ी प्रणाली में नंबर 1 मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी तंतु एवं ज्ञान तंतु, ये 4 प्रकार के सिस्टम हैं। नाड़ी समूह में 4 प्रकार के सिस्टम हैं। नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 सुषुम्ना नाड़ी, नंबर 3 नाड़ी तंत्र और नंबर 4 है ज्ञान तंत्र। मस्तिष्क यह हमारे शरीर का और नाड़ी प्रणाली का सबसे प्रमुख अंग है। मस्तिष्क सिर में होता है, तो यह हमारे शरीर का और नाड़ी प्रणाली का सबसे प्रमुख अंग है। मस्तिष्क एक सख्त हड्डी के खोल के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे आप खोपड़ी कहते हैं। हमारे सिर के मध्य में स्थित होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी अंदरूनी और बाहरी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब सुषुम्ना नाड़ी, यह एक लंबी नालीनुमा संरचना है जो हमारे पीठ में ऊपर से नीचे तक जाती है, जिसकी सुरक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी करती है। गर्दन के पास यह मस्तिष्क से जुड़ी होती है, यानी पीठ में रीढ़ की हड्डी के 2 सेंटीमीटर दाएं और 2 सेंटीमीटर बाएं नीचे तक ये सुषुम्ना नाड़ियां फैली रहती हैं। इन नाड़ियों में या इन पार्ट में अजीब तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो थोड़ा सा फ्लावर टाइप में होती हैं। ये तंतु कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य है कि शरीर की एक्टिविटीज में अलग से कोई इंजेक्ट चीज का तुरंत मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य इनका है, यानी इनकी जिम्मेदारी एक अलग है। जैसे आपके कांटा लगता है, मान लो पैर आप नंगे पैर जा रहे हैं और किसी कांटे पर या नीडल पर पैर आपका पड़ गया, तो बिना सूचना के, यानी मस्तिष्क को बिना सूचना किए भी पैर आपका ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उसमें जो नीडल अंदर चुभने के बाद जो दर्द आपको हुआ, दर्द के पहले वो सूचना मस्तिष्क को इन्हीं के द्वारा भेजी जाती है, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या है, किस जगह खुजली हो रही है। इस तरीके से आपको सभी चीजें मालूम होती हैं। इसी प्रकार से कोशिकाएं, अन्य कोशिकाएं भी अन्य अंगों से जुड़ी होती हैं और उनका भी रोल मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है।
अब आता है नाड़ी तंत्र। यह बारीक धागे की तरह होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले हैं। यह बारीक धागे शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। एकदम पूरे शरीर में जाल बिछा है, जैसे यहाँ पर अगर स्किन को बाहर निकाल दिया जाए तो पूरे में आपको एक छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल बिछा हुआ दिखाई देता है। अज्ञान तंत्र, ऐसे सभी अंग जो हमारे चारों तरफ की वस्तुओं का ज्ञान या अनुभव हम करते हैं उनको ज्ञान अंग कहते हैं। जो अनेक अनुभव हमें होते हैं वे हैं देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना तथा चखना या स्वाद आदि होते हैं। इसके अनुसार 5 अंग होते हैं। आंख देखने के लिए होती है, कान सुनने के लिए होती है, कान सुनने के लिए होते हैं, और जीभ स्वाद लेने के लिए होती है, नाक सूंघने और सांस लेने के लिए होती है तथा त्वचा स्पर्श के लिए होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारे 5 अंग हो गए। कौन कौन से हो गए? आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये हमारे स्पर्शी अंग हैं। तो शरीर के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके आगे की जानकारी आगे अगली क्लास में दी जाएगी। तब तक के लिए